الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرمایا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مہاجر اور انصار وہ ہستیاں ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، وہ بھی انہوں نے بھی کلمہ حضور کا پڑھا اور دور نبوی پایا. تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ایسی ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو. ایک جگہ پر رب العزت فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا بے شک اللہ رب العزت راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے یا رسول اللہ آپ کی بیعت فرما رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے. یا نبی اللہ ہے میرے محبوب، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو خالق کائنات عز و جل جن کو اپنی رضا کی ڈگری عطا فرمائے انہیں صحابہ کہتے ہیں. جن کے ایمان کو اللہ پسند فرمائے انہیں صحابہ کہتے ہیں. اور بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو اللہ نے پسند فرمایا، میرے صحابہ کے دلوں کو اللہ نے پسند کیا. کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے ستھرے دل جن ہستیوں کے تھے، فرمایا انہیں چن چن کے اللہ رب العزت نے میرا صحابی اور میرا یار بنا. اور ان صحابہ میں پھر معیار ہے، ان صحابہ کے اندر پھر مقام و مرتبہ ہے، ان صحابہ کے اندر پھر درجے ہیں. خالق کائنات عز و جل اور رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درجے عطا فرمائے، فرمایا سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے السابقون الاولون میں جو شامل ہیں ان کا اسلام سب سے زیادہ معتبر ہے، ان کی شان بھی سب سے زیادہ معتبر ہے. جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھا، اور جو مہاجر ہیں، انصار ہیں، ہجرت کرنے والے اور ان کی آگے مدد کرنے والے، ان کا استقبال کرنے والے، یہ جو ہے وہ اول ہے. ان کی شان وراء الورا ہے. پھر وہ 10 صحابہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی. پھر وہ صحابہ جو جنگ بدر کے اندر شریک ہوئے، پہلی جنگ، پہلا مارکا، پہلی لڑائی کافروں کے ساتھ، اس بدر کے میدان میں جو شریک ہوئے وہ سب سے اول ہے. ان کی شان وراء الورا ہے. اور پھر ان صحابہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو بڑی شان عطا فرمائی جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، جن میں حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابہ ان کو سب سے زیادہ مقام، اور ان 4 میں سے بھی جس کو سب سے اعلیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن کو سب سے جو ہے وہ بڑا اللہ رب العزت نے بنایا، اس کا نام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے، اس امت کے سب سے بڑے عالم، اس امت کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار، اس امت کے سب سے بڑے جانثار، اور اس امت کے سب سے بڑے نبی علیہ السلام کے محب صادق، اور اس امت میں سب سے بڑے صدیق جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا فرمایا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے جن کی شانوں اور جن کی عظمتوں کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا فرمایا. سارے صحابہ حضور کے شانوں والے، سارے صحابہ مقام والے ہیں، ہم اہل سنت ہیں اور ہم سب کی شانوں کا اقرار کرنے والے.
सब की शानों को बयान करने वाले, बल्कि आले सुन्नत का स्टेज होगा, आले सुन्नत की मस्जिद होगी, तो तुम्हें किसी सहाबा का बुग़्ज़ नजर नहीं आएगा। ये जिसकी भी शान बयान करेंगे ऐसे लगेगा जैसे सबसे ज्यादा शान इसी की है। यही आले सुन्नत की शान है कि जिसकी शान बयान करे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को मुख्तलिफ जो है वो शानें अता फरमाई, और ऐसी ऐसी मुनफरिद शानें अता फरमाई और जो किसी दूसरे को नहीं अता फरमाई। मिसाल के तौर पर बड़े सहाबा हैं जिनकी मुनफरिद शानें। एक सहाबी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सब बोले रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम, जिनका अलम, जिनका इस्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर बयान किया। सहाबा में से किसी का नाम कुरान के अंदर नहीं आया। एक सहाबी हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको हुजूर ने अपना बेटा बनाया, जिनको सरकार ने मुंह बोला बेटा बनाया हुआ, और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे, जिनके साथ हुजूर ने मोहब्बत फरमाई, जो गुलाम थे, और जब हुजूर की बारगाह में आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने इतनी इज्जत अता फरमाई, कुरान में उनका जिक्र आ गया। ये सहाबी वाहिद है कि जिनका नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। किसी और सहाबी को ये शान, ये मुनफरिद अंदाज किसी के नसीब में नहीं हो। एक सहाबी हजरत सैयदुना साद बिन अबी वक़ास, सबका रज़ी अल्लाह तआला, हजरत साद बिन अबी वक़ास, ये वो वाहिद सहाबी है जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के अंदर तीर चलाया। सबसे पहला तीर, ये इनकी शान है और इनका अंदाज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको तौफीक अता फरमाई। बाद में तो फिर सबने चलाया, जंगों के मौके पर काफिरों पर तीर बरसाए, लेकिन हजरत सैयदुना साद बिन अबी वक़ास जब पहले सहाबा, वो सहाबी है जिन्होंने सबसे पहले तीर चलाया। और यही वो सहाबी है एक जंग के मौका पर तीर बरसा रहे थे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए इर्मी या साद फिदा का उम्मी व अबी, ए साद तुम तीर चलाओ और काफिरों को अपने तीर से जख्मी करो, मारो, जिहाद करो। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, ये ऐसा तुम तीर चलाओ, मैं, मेरे माँ बाप तुम पर जो है वो कुर्बान हो, ऐसा तुम्हारे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, मेरी माँ कुर्बान हो जाए, मेरा बाप कुर्बान हो जाए, ऐसा तुम्हारा अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये हजरत साद बिन अबी वक़ास, ऐसा अंदाज, ऐसी मुनफरिद शान किसी के हिस्से में नहीं है। एक सहाबी है हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, बोलिए रज़ी अल्लाह तआला। हम सब की जो है वो सब की शानों का इकरार करने वाले। कुछ ऐसी शानें हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने मुनफरिद तौर पर अता फरमाई और वो किसी दूसरे के हिस्से में नहीं आई। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजरान के लोग आए और कहा, हमारे लिए कोई मुअल्लिम तैयार कर दे, हमारे लिए कोई जो है वो रहबर दे दे, कोई हमें जो है वो सीधे रास्ते पर लगाए, हमें कोई तबलीग करने वाला और हमें कोई नमाज सिखाने वाला, हमें दीन सिखाने वाला, हमारा कोई रहबर आप अता फरमाए, कोई मुअल्लिम, कोई उस्ताद अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब उस्ताद लेने आए तो सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह मैं तुम्हें वो शख्स दूंगा जिस जैसा मेरी उम्मत के अंदर अमीन ही कोई नहीं, और मैं सबसे बड़ा अमानतदार तुम्हें मैं अपनी उम्मत का दूंगा। आप सारे सहाबा, जैसे हजरत मौला अली के बारे में आता है ना, ग़ज़वा खैबर के मौका पर जब खैबर का किला फतह नहीं हो रहा था तो हजरत मौला अली की आंखों में दर्द था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुबह झंडा उसे दूंगा जिसके हाथों अल्लाह खैबर को फतह अता करेगा, और वो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे प्यार करते हैं। तो सारे सहाबा रात दुआ करते रहे, या अल्लाह सुबह झंडा हमें मिल जाए, या अल्लाह सुबह झंडा हमें मिल जाए, जिसके अंदर सारे सहाबा शामिल थे कि या अल्लाह, या बारी ताला झंडा हमें मिल जाए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ खबरी सुना दी, जिसे झंडा मिलेगा उसके हाथों अल्लाह फतह अता फरमाएगा। तो सारे सहाबा दुआ कर रहे थे, लेकिन जब सुबह हुई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली कहाँ है? ये हजरत अली की शान, मुनफरिद शान है जो मौला अली के हिस्से में आई। सारे सहाबा में मुनफरिद बखरी शान अल्लाह
علی کو عطا فرمائی. اب ابو بکر صدیق کی شان میں بیان کرے تو مولا علی کی شان سے منحرف نہیں بلکہ ہم مولا علی کی شان کو بھی ساتھ ساتھ بیان کریں. حضرت مولا علی کی یہ شان کا حصہ. اور پھر جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ نجران کے لوگ آئے اور کہا معلم دو اور میں صبح وہ دوں گا جو میری امت کا سب سے بڑا امین ہوگا. صحابہ کہتے ہیں ہم اس رات کی دعا کرتے رہے یا اللہ صبح ہمیں بھیج دے جسے نبی علیہ السلام نے سب سے بڑا امین قرار دیا. تو فرمایا جب صبح ہوئی سارے صحابہ دعا کرتے رہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو عبیدہ کدھر ہے؟ حضور نے فرمایا ابو عبیدہ کدھر ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام نے انہیں معلم بنا کر بھیج دیا اور فرمایا میری امت کا سب سے بڑا امین دیکھنا ہے, سب سے بڑا امانت دار دیکھنا ہے تو ابو عبیدہ کو. یہ میری امت کا سب سے بڑا امین. اسی لیے حضرت ابو عبیدہ کو امین الامت کہا جاتا ہے. امین الامت کہا جاتا ہے. تو یہ منفرد شان اللہ رب العزت کے پیارے رسول نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائی اور ہم ان شانوں کا اقرار کرنے والے ہیں. اہل سنت و جماعت ساری شانوں کو بیان کرنے والے ہیں. کسی ایک کی شان بیان کرے تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی نفی ہے. دوسرا بھی جب اس کی شان بیان کی جائے گی تو اس کی منفرد شان بیان کی جائے گی. حضرات گرامی قدر جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ کے لیڈر اور سارے صحابہ کے امام. سارے بولو سبحان اللہ. حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے آپ نے جو ہے وہ اسلام کا کلمہ پڑھا اور اسلام کا یہ حضرت مولا علی کی گواہی سن لے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ شان ابو بکر ہے اور بزبان مولا علی ہے. شان ابو بکر اور حضرت مولا علی کی زبان سے حضرت مولا علی خود ابو بکر صدیق کی شانوں کو بیان کرتے. یہی تو عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اہل بیت کی شان سننی ہے صحابہ سے سنو اور صحابہ کی شان سننی ہے تو اہل بیت اطہار سے سنو. صحابہ کی شان سننی ہے تو جو ہے وہ مولا علی سے سنو اور حضرت امام حسنین کریمین سے سنو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے جو ہے وہ دور کے اندر بیٹھے ہوئے اور اپنے پاس بیٹھے لوگوں کو اپنے دور کے اندر جب آپ تک جو ہے وہ آپ کی حکومت تھی, آپ کی سلطنت تھی, آپ بیٹھے اور اپنے پاس بیٹھے لوگوں کو بتائے اور نبی علیہ السلام کا وہ انداز, جناب ابو بکر صدیق کا وہ انداز کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا, فرماتے ہیں خدا کی قسم جب جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا ایمان ظاہر فرمایا, آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا تو فرمایا حضرت مولا علی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے بڑی ماریں کھائی, حضور کے لیے بڑی ماریں کھائی. کافروں نے مارا اور اتنا کافروں نے مارا کہ نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا. یہ کافروں نے ظلم و ستم کیا. اول الصحابہ اور کائنات کے سب سے جو ہے وہ انبیاء کے بعد سب سے بڑے مومن کے ساتھ کافروں نے یہ سلوک کیا اور فرمایا جب مار پڑ رہی تھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ دھکے دے رہے تھے, کافر دھکے دے رہے, لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی ناموس کا پہرا دے رہے. فرمایا حضور کی ناموس پر عزت پر اس وقت بھی ابو بکر صدیق پہرے دار تھا جب ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شان بیان کرتے ہوئے یہ اظہار کرتے ہوئے مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. فرمایا اس وقت صرف ابو بکر صدیق تھا جو نبی کے لیے مارے کھا رہا تھا, جو نبی علیہ السلام کے لیے جسے دھکے پڑ رہے تھے اور جسے گلیوں کے اندر روتا جا رہا تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا. سارے کافر ایک طرف, ابو بکر صدیق ایک طرف, مارے کھائی لیکن اسلام کا کلمہ نہیں چھوڑا. یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام قبول کیا تو پھر سب کچھ اپنے آقا پہ نچھاور کر دیا, حضور کے قدموں پہ دیر کر دیا. وہ مال کیا تھا آپ نے تو اپنی جان بھی جو ہے حضور کے قدموں میں ڈال دی. کئی مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر کھیلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کرے.
हुजूर के साथ जानिसारी का हक अदा कर दिया। और फिर ऐसी शानें पाई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी फरमा रहा है वसयुजन्नबुहल अत्का अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का। फरमाया सबसे बड़ा मुत्तकी कायनात में देखना है, अंबिया के बाद तो देखो अबू बकर को। सुभान अल्लाह। जनाब अबू बकर सिद्दीक जो जहन्नम से सबसे दूर कर दिए गए और कायनात में सबसे बड़ा मुत्तकी जिसे अत्का अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाए, फरमाया सिर्फ मुत्तकी नहीं, सिर्फ परहेजगार नहीं, सारे परहेजगारों का और सारे मुत्तकियों का अगर सरदार देखना है इस उम्मत का तो जनाब अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आगे एक और हदीस पाक बुखारी शरीफ के सुने, हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से चंद दिन कबल 3 दिन पहले नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को इकट्ठा किया और वाज फरमा रहे थे। वो वाज कितना कीमती होगा जो हुजूर की जिंदगी का आखिरी वाज था। सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज फरमा रहे, दौरान खुतबा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बंदे को इख्तियार दिया वो दुनिया में रहे या वो अपने रब के पास जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे इख्तियार दे दिया और उसने अपने रब के पास जाना पसंद कर लिया। सुभान अल्लाह। जब ये बात फरमाया सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान के बाबू गुमान में भी नहीं था। अभी तो मैं जो है ये एक माहौल बना के अर्ज कर रहा हूँ, इस वास्ते आपको पता चल गया, लेकिन सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान ने तो पहली मर्तबा ये सुना था। सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान कहते हमारा ख्याल नहीं गया उस तरफ कि हुजूर अपनी वफात का अपने विसाल का इशारा फरमा रहे। फरमाया जब ये सुना तो हम में से कोई भी जो है वो ये आम रूटीन के अंदर सुन रहा था, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू जारी हुए। फरमाते हम देख रहे थे, हम हैरान थे कि ये एक बंदे की बात हुई है, एक बंदे का नबी अलैहि सलाम ने जिक्र किया, तो रोने वाली कौन सी बात है, इसमें रोने वाली कौन सी बात है। वरना 3 दिन बाद जब हुजूर का विसाल हो गया तो हमें पता चला जिस चीज का हमें नहीं ना खबर हुई, जिस चीज का हमें पता नहीं चला, अबू बकर सिद्दीक ने सुनते ही जो है वो भाग लिया। अबू बकर सिद्दीक को पता था कि ये नबी अलैहिस्सलाम ने अपने विसाल की खबर अता फरमाई कि अभी जो है वो चंद दिन बाद मेरा विसाल होने वाला है, मैंने अल्लाह के पास जाना पसंद कर लिया। फरमाया ये हमारे दरमियान जिसमें हजरत उमर भी थे, हजरत उस्मान भी थे, मौला अली भी थे, सारे सहाबा मौजूद थे। फरमाया लेकिन इस बात को सिर्फ और सिर्फ जाना तो अबू बकर सिद्दीक ने जाना। और फिर ये बात बयान करके हजरत अबू सईद खुदरी कहते काना आलमना अबू बकर, काना अबू बकरिन आलमना। फरमाया ये अबू बकर हम में से सबसे बड़ा आलिम दीन था, सबसे बड़ा आलिम। अगर देखना है तो सहाबा भी कहते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक को देखो, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान, आपकी ये रिफ़त, आपका ये मकाम, अगर आपका अंदाज देखा जाए वो हिजरत वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को खुसूसियात भी अता फरमाई। जैसे मैंने चंद खुसूसियात का पहले जिक्र किया कि हजरत साद बिन नबी वक़ास की एक खुसूसियत थी, हजरत अमीरुल उम्मत अबू उबैदा बिन जर्राह की एक खुसूसियत थी जो किसी दूसरे को नसीब नहीं हुई। और खुसूसियत कहते ही उसे है जो उसमें जात में पाई जाए दूसरे में ना पाई जाए। खासा कहते ही उसे है जो उस जात के अंदर पाया जाए और गैर के अंदर ना पाया जाए, इसी को खुसूसियत कहा जाता है। अगर हम खुसूसियात का जिक्र करें तो हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम, सब बोले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत मौला अली को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के महबूब ने 18 ऐसी खुसूसियात अता फरमाई जो किसी में नहीं पाई जाती, जो किसी सहाबी के अंदर नहीं पाई जाती थी। सिर्फ और सिर्फ ये हजरत मौला अली का हिस्सा था। 18 खुसूसियात जो सिर्फ हजरत मौला अली के अंदर पाई जाती है। और फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, अल्लाह के प्यारे महबूब ने 12 खुसूसियात ऐसी अता फरमाई जो किसी और सहाबी में पाई नहीं जाती, जिनको जो है वो हुजूर की हदीसें बयान करती हैं। और फिर आगे हजरत फारूक आजम की शान क्या है। हजरत फारूक आजम जिनके बारे में नबी अलैहि सलाम ने फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो है मेरे सहाबा उमर बिन खत्ताब होता। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको पूरी दुनिया जो है वो मान गई, जिनके अदल और इंसाफ को अपने
अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब ने आपको 40 खुसूसियतें अता की। सुभान अल्लाह। कितनी खुसूसियत? 40 खुसूसियत जनाबे उमर की ऐसी है कि जो किसी और सहाबी में पाई नहीं जाती, सिर्फ हजरत उमर का हिस्सा। और फिर आइए, जो अव्वल सहाबा है, जो अफदल सहाबा है, जो आलम सहाबा है, जो सहाबा में सबके लीडर और इमाम है, उनमें कितनी खुसूसियात है। हदीस पाक के अंदर बुखारी शरीफ को खोल लो और सियासत की कोई जो है वो किताब खोल लो, उसके अंदर जनाबे अबू बकर सिद्दीक की आपको खुसूसियात का ढेर नजर आए। हजरत अबू बकर सिद्दीक की 80 से ज्यादा ऐसी खुसूसियात है ये तो किसी और सहाबी के अंदर नहीं पाई जाती है, अकेले अबू बकर के अंदर पाई जाती है। सुभान अल्लाह। जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब ने 80 से ज्यादा खुसूसियात अता की जो किसी में नहीं पाई जाती। उन खुसूसियात में हजरत अबू बकर सिद्दीक का सबसे पहले इस्लाम कबूल कर। उन खुसूसियात में हजरत जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका फिर हिजरत के मौके पर वो एक हदीस पढ़ लो बुखारी शरीफ की, जो जिससे 2-3 सफ़े जो है भरे हुए, बड़े-बड़े लंबे सफ़े भरे हुए, उसके अंदर जो तज़किरा होता है जनाब अबू बकर सिद्दीक कैसे जो है वो उनका अंदाज था। हिजरत का वाकया तो आपने सुना हुआ है, जब मदीने की तरफ लोगों ने हिजरत की तो अल्लाह के रसूल ने सारे सहाबा में से जिसका इंतखाब किया वो अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। सारे सहाबा में से जो अल्लाह ने इंतखाब किया, अल्लाह के रसूल ने इंतखाब किया कि ये रसूल अल्लाह के साथ हिजरत करेंगे, वो जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। 3 महीने पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 2 ऊँटनियां खरीदी थी। 3 महीने पहले, अभी जो है वो अभी हिजरत से 3 महीने बाकी, हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक को इशारा मिला था तो आपने 2 ऊँटनियां खरीदी, उनकी खिदमत की, उनको कीकर के जो है वो ये खास किस्म का उनको चारा खिलाते रहे, ये कीकर का जो है वो ये दरख्त जो है वो खिलाते रहे। इसकी वजह ये थी, मुहद्दिसीन किराम ने लिखा कि जो जानवर ये खाता है उसके अंदर कुव्वत होती है, वो मोटापे के अंदर नहीं आता बल्कि दुबला पतला होता है, ताकत ज्यादा होती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक चाहते थे जब हम सवारी करें, मैं और मेरे प्यारे आका जब ऊँटनियों पर बैठे पीछे काफिर ताक़ुब करे तो हुजूर की सवारी सबसे तेज होनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का इंतजाम आप 3 महीने पहले करते रहे। और जब नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए जिस रात हिजरत करने की, अबू बकर सिद्दीक पहले इंतजार कर रहे। ये भी शान, ये भी खुसूसियत जनाब अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। उस सफर के अंदर बड़ा लंबा जो है वो सफर है, अगर उस तरफ जाए तो ये एक मुकम्मल मौजू है, लेकिन मैं साथ एक दो बात बयान करूं। नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक का अंदाज़े मोहब्बत, अंदाज़े वफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब चलते हैं हुजूर के साथ तो किस अंदाज से चल रहे हैं। मुहद्दिसीन किराम लिखते हैं, हदीसों के अंदर जिक्र है अबू बकर सिद्दीक कभी हुजूर के आगे होते, कभी पीछे होते, कभी दाएं जाते, कभी बाएं जाते, और ये जो है वो आपकी कैफियत है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते अबू बकर क्या हो गया, किस परेशानी के अंदर मुब्तला हो? फरमाया या रसूल अल्लाह, अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब ख्याल आता है पीछे से कोई हमला होगा और पीछे से कोई ताक़ुब करेगा, पीछे से कोई जो है वो पकड़ते आएगा तो फिर मैं पीछे हो जाता हूँ, और कोई नुकसान पहुंचे तो मेरे आका को ना पहुंचे, मुझे पहुंचे। जब मुझे ये डर लगता है कि आगे से कोई छुपा होगा और छुप के हमला करेगा फिर मैं आगे आ जाता हूँ। जब दाएं की तरफ इशारा मिलता है तो मैं दाएं आ जाता हूँ, कहीं कोई दुश्मन हमला न कर दे। तो या रसूल अल्लाह, मैं तो चाहता हूँ सारे तीर, सारे नेज़े, सारे दुश्मनों की सारे जो है वो आज़ाद अबू बकर के जिस्म पर बरसे और अबू बकर के जिस्म में तवज्जो मेरे आका को मामूली तकलीफ भी ना। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अबू बकर सिद्दीक का अंदाज था, ये आपकी खुसूसियत थी। एक जगह पे आपने बिठाया, अभी तो गार में जाना है, गार में तो बड़ा बड़ा इनाम है, लेकिन गार से पहले एक जगह पर आपने ठंडी छांव देखी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नीचे अपनी चादर बिछाई, हुजूर को फरमाया यहाँ आराम फरमाए और दूध लेने निकले। ये अंदाज है जनाब अबू बकर सिद्दीक का। एक चरवाहे को देखा और उसे जो है वो कहा कि दूध चाहिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नोश करने के लिए। चरवाहे ने कहा कि दो लो, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की नफासत पे कुर्बान, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी का कितना ख्याल है। फरमाया पहले अपने हाथ जानो ना, अपने हाथ साफ करो, फिर दूध को हाथ लगाना।
फिर थनों को हाथ लगाना और फिर दूध दोना और ये अपने हाथ भी साफ करो, बर्तन भी साफ करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साफ और शफाफ दूध जो है वो निकाला, कपड़ा नीचे रखा और उस कपड़े के अंदर जो है वो पोन के जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफासत का, आपकी जो है वो पाकीज़गी का इतना ख्याल जनाब अबू बकर सिद्दीक को उस सफर के अंदर जिसमें आपका ताक़ुब जो है वो काफिर कर ले, जिसमें जो है वो परेशानी है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कमाल कर दिया, यारी का हक अदा कर दिया। ये है यारे बारे मुस्तफा, जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी शान अता फरमाई जो किसी सहाबी के हिस्से में नहीं आई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अव्वलुस सहाबा है। आपकी सीरत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका इश्क रसूल, आपका अंदाज़े मोहब्बत, आपका वफाए रसूल, आपका अदब रसूल अगर हम देखें तो हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। एक जो है वो बात पर अगर अमल कर ले तो हमारी जिंदगी का रुख बदल जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि रब्बुल इज्जत हमें समझ की, अमल की तौफीक अता फरमाए।